I guess the recording has started. Yeah, it has been started. Great. Okay. So till now we have seen we will talk about perspectives also. Let me know if this font size is okay for you. Okay. Yeah, it is present. Here we are talking about column versus row storage. So right. Did you see this somewhere? आपने कभी ये visualize किया या आपको देखने का chance मिला that here there is something called as row storage or column storage? Have you seen it? यस सर, अपन जब SC11 में टेबल क्रिएट करते तो वहां पर कैरेक्टरिस्टिक्स में ऑप्शन है रोस्टर और कॉलम शूटर। Right? Yes. So ये ECC में था या नहीं था? क्या लगता है आपको? ECC में नहीं था, हैना में है। ECC में Okay. सिर्फ रो स्टोरेज था। Okay. I'll open a ECC system for you. Okay. ओके। So this is my ECC system. Let me check its password quickly. Chetan Shetty. Okay. SCLR में चलते हैं हम कोई टेबल ओपन करते हैं हमारा लेटेस्ट से मटेरियल मास्टर टेबल then we will go to technical settings, we will go DB specific properties. Now I'll just show you one thing here. This is MS SQL मतलब it is obviously ERP system. Okay, if you see this is 617, so basically 617 means older systems, not the newer ones. So basically अब ये तो हमारा old system है, still यहाँ पे क्या दिखा रहा है ये? रो स्टोर दिखा रहा है। कहाँ रो स्टोर दिखा रहा है? अब मतलब देखो ना, ऑप्शन है ना वहाँ पर, क्लिक नहीं है। No, but what is ticked still? इट इज क्लिक स्टे सॉरी, इट इज चेक बाय द कॉलम स्टोर। देन ये तो हमारा हाना तो हम ECC में भी हैंडल कर पा रहे थे कॉलम स्टोरेज, देन व्हाट्स द डिफरेंस, ये अपने को क्वेश्चन होना चाहिए नेक्स्ट. ओके, सो व्हाट इज कॉलम स्टोरेज एंड व्हाट इज रो स्टोरेज, फर्स्ट विल अंडरस्टैंड दिस एंड देन वी विल सी कि ECC में भी तो ये है, एंड देन व्हाट इज दिस. ओके, सो लेट अस स्टार्ट समथिंग विद कॉलम स्टोरेज. लेट्स स्टार्ट विद रो स्टोरेज. व्हाट इज अ रो स्टोरेज? ओके, लेट अस से मेरे पास में है ID, name, age and salary. Let us say there's ID 1, 2, 3. That's enough for now. Suraj. Sir, one question is, I have Yeah. also the ECC server access. Okay, I'm Uh-huh. opening the table, same table in the SC11. So I'm not Mhm. getting that option column or roster. It is Okay. the product version का कुछ और रहेगा? Yes. Can you try sharing it and show it to me? Share screen. Okay. Is it visible, sir? Currently, Yeah, I can see. I can see. I can see that VBAC is there. So VBAC, Okay. it is not any option. This is your And office I'm provided server. no, I have purchased from one of the vendor for Okay. this Go to some tax. system. Go to system. Okay, how to just change the statement. Yeah. Hmm. Okay. It is also 731. ERP. Go down. Go down. Scroll down. Okay. Okay. Can you see that 606 and all? Mm-hmm. This is enhancement package 6. This is much older than what I'm using right now. Okay. Okay. They will stop supporting it in a year or two, something like that. 25 Mm-hmm. they said, but I don't think 25 they'll stop.
Okay, that's okay. That's release difference only. Okay. Okay, I'll start sharing again. Can you see now? Yeah, it is visible. Okay, so something like this we had. Okay, now how data is stored in row storage? Something like this. Okay, something like this. So let us say अब इस ये हो गया हमारा रो स्टोरेज. लेट अस सी विद कॉलम स्टोरेज क्विकली. अब कॉलम स्टोरेज के दो वेरिएंट्स है कैसे डेटा स्टोर होता है. बोथ आई विल शो यू. फॉर नाउ फर्स्ट विल सी द सिंपलर वन. सो व्हाट डू यू थिंक कॉलम स्टोरेज कैसे काम करता होगा? वन. तो डेटा कॉलम में स्टोर करता रहेगा, जैसे लाइक आईडी के लिए एक अलग कॉलम रहेगा, नेम के लिए अलग कॉलम रहेगा, एज के लिए अलग, राइट. काइंड ऑफ थिंग. या देयर इज अ सेकंड वेरिएंट आल्सो. वो हम आगे देखेंगे हमारे कोर्स में. फॉर नाउ विल जस्ट टेक इट सिंपली समथिंग लाइक दिस. ओके, और ये समझ जाओ आप, ये ऐसे की ऐसे ही है, बाकी दोनों चीजें भी. ओके, नाउ व्हाट विल हैपन. अब मुझे बोलना है कि मुझे जो भी बंदे एज 30 से नीचे है मुझे वो सिलेक्ट करके लेकर आओ. तो इन बोथ द सिस्टम हाउ दिस विल हैपन. For the column storage, or select directly go for the ID section, sorry, age section, then it will pick the data. एग्जैक्टली. जो भी यहाँ 30 पर से हमको नीचे है ये 3 हिट्स करने हैं. वेयर एज यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड देन ओनली हम मुझे पता चलेगा कि सबसे कम एज किसकी है, 30 से नीचे कौन है. राइट. सो उसका दैट इज पूरा वेयर. रो ट्रैवल करना पड़ेगा, राइट, मतलब पूरा रो एग्जैक्टली. फॉर एग्जैक्टली. एग्जैक्टली. सो ये रो लाइक फॉर्मेट में हमारा प्रॉब्लम यहाँ पे होता था. ओके, दैट इज वेयर हम किसके साथ में जाते हैं खाना में, कॉलम स्टोरेज के साथ में. अब यहाँ पे और एक सेकंड प्रॉब्लम क्या है. हाना हाना के अंदर कॉलम स्टोरेज इज आल्सो अ प्रॉब्लम समटाइम्स. नाउ व्हेन इज इट अ प्रॉब्लम? वन सेकंड, लेट मी सी इफ आई हैव स्टोर्ड इट समवेयर. आई डोंट नो. ओके. ओके, या. सो हियर यू सी, अगर आप देखोगे, सो it has to go via all of them and then get back to us. Whereas in terms of column storage, that is what I was telling you. Column storage में वो क्या करता है, simply अब लेके आता है. Apart from this, let us say I have a data जो मैंने यहाँ पे बनाया है ना. What we'll do, we'll just add few more columns to it, or few more rows to it. Let us say mesh 2, mesh 3, let us say. इनकी भी एज हो गई 45 रहेगी और इनकी सैलरी हम कुछ और फॉर्मेट में डाल देंगे. समथिंग लाइक दिस. ओके. अब हमारा सिस्टम एसएपी कॉलमनर स्टोरेज डेटा कैसे स्टोर करेगा. इसका होगा 4 लेटेस्ट से और इसका होगा 5. अब ये वाली चीजें हमको दिखेगी नहीं, यू कैन नॉट विजुअलाइज इट. ओके, बट आई विल जस्ट टेल यू ये ऐसे होता है. इंडेक्स 1 2 3. इसका मतलब क्या है? तो आईडीज है एम्प्लॉयज के. एग्जैक्टली. नो 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 नो, ये यहाँ पर आपको ये बता रहा है कि इसके बाद की भी जो इंडेक्सिंग होगी, तो मेरा तो वैल्यू है 45, इसके बाद की वैल्यू 45, इसके बाद की वैल्यू 45. यहाँ पर भी अगर ये सब वैल्यूज अगर कॉमन रहती सबकी, तो किस तरह से स्टोर करता. दैट इज व्हाट आई वाज शोइंग इट हियर आल्सो. सो लेट अस से 20 था, सबका एज अगर 20 देता तो ये क्या बोलता, 2 3 4 5, सबका क्या है, एज क्या है, 20. सो राइट फ्रॉम माय इंडेक्सिंग. अब ये इंडेक्सिंग दो जगह की ले सकता है, एक तो नेम की इंडेक्सिंग ले सकता है, या तो फिर आप कौन से नंबर के रो पे हो. So what do you think, what will be the ideal indexing for this? The ideal और रो indexing वाइज for this will be row wise. We are on which row right now? 3. थर्ड. This is 4. This is 5. Done. So आपको नहीं लगता क्या कि what column storage made sure, column storage ने बताया कि हाँ भाई हमारा जो data storage pattern है that is much easier. Okay, and that is where there was an advantage. अगर आप row storage को बोलो तो it has to traverse through all the record, whereas column storage में ये चीज की जरूरत इनको नहीं पड़ी.
ओके नाउ और एक चीज, अब कॉलम स्टोरेज से क्या फायदा क्या होगा? ओके, दैट इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड हियर, एडवांटेजेस. What were the advantages of column storage? Faster retrieval, on the fly calculation. ओके, ऑन द फ्लाई कैलकुलेशन यानी कि यहाँ पर हमारे पास में मल्टीपल अगर काफी सारा बड़ा सा डेटा सेट भी रहा तो इनका कैलकुलेशन काफी इजीली होगा, राइट? यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट. वेयर एज अगर आप सेम चीज को आप इमेजिन करो आपके इससे कि अगर हम रो स्टोरेज में अगर कुछ कैलकुलेशन करना चाहते हैं, हाउ डिफिकल्ट इट विल बी और हाउ टाइम कंज्यूमिंग इट कैन बी, राइट? So that is again a problem here. Okay. Now one more thing what I want to show here is अगर आप column storage use करते हो, so there is a chance that column storage भी slow हो सकता है. और ऐसा सिनेरियो क्या होगा? So the only scenario for this will be अगर मैं select all करूं, so in this case what happens? Select all, जब भी मैं अगर select all का query लिखूंगा तो उस टाइम पे मैं let's say data retrieval on row storage is much faster than column storage. But do you ever see a scenario where we do select all without where conditions and all? No. मैंने तो नहीं देखा, but yes, no, right? Yeah, right, no. एग्जैक्टली. सो हम कंप्लीट टेबल का डेटा, देयर आर वेरी वेरी रेयर सिनेरियो जब हम ये करेंगे विदाउट अ वेयर कंडीशन. वेरी रेयर सिनेरियो दैट अगर कोई कस्टमाइजिंग टेबल है और उसके अंदर कोई कंट्रोल डेटा है तो कंट्रोल हम पूरी की पूरी टेबल को लेके आते हैं टू सी हाउ कंट्रोल डेटा शुड लुक लाइक एंड वर्क. और बस उस टाइम पे मैंने ये चीज देखी है. अदर देन दैट नेवर एवर आई हैव सीन दिस. ओके नाउ अब इस केस में कौन किसका एडवांटेज इस पे ज्यादा हो गया? रो स्टोरेज का एडवांटेज ज्यादा हो गया जब मेरे को सिलेक्ट ऑल करना है रहेगा, राइट? या अब मेरे पास में और एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, लेट्स से कोड टू डेटा पैराडाइम. ओके, कोड टू डेटा या डेटा टू कोड पैराडाइम, ये हमने कल डिस्कस किया था क्या? या सर कल किया था अपन. ओके, सो इसके अंदर और एक चीज अगर आप देखोगे, ओके आई डोंट थिंक मेरे पास वो फाइल कंप्लीटली है, आई नीड टू फाइंड इट आउट इन माय हार्ड ड्राइव. सो कोड टू डेटा पैराडाइम में क्या होता है? कोड टू डेटा पैराडाइम एंड डेटा टू कोड. ओके, सो एक ही चीज यहाँ पर अभी आपको एक्स्ट्रा उसके अंदर जानने की जरूरत है कि जब भी मैं कोड टू डेटा पैराडाइम लूँ, ठीक है, यानी कि आई एम पुशिंग माय लॉजिक टू database layer, and what's the advantage of it? Because my application and present my application database are in the same sync and they are already a RAM based approach which we are considering, where is not only RAM based, it's a on memory calculation, on the fly calculation, right? So there what happens, the data retrieval rate or let's say the calculation can happen much more faster than whatever we are doing, right? या अब इसके अंदर इसका एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कि लेट अस से आई हैव ALV. ओके, मुझे क्या करना है, एक ALV प्रिंट करनी है और लेट्स से fetch from मारा एंड डिस्प्ले. ओके, ट्रेडिशनल अप्रोच क्या था इसका? For the ALV, you are talking about SLV. Yeah. No. Traditional approach was, let's say select query जिससे हम डेटा लेकर आते थे. ओके, देन हम क्या करते थे, इंटरनल टेबल में उसको लेते थे एंड देन फाइनली इसके ऊपर प्रोसेसिंग होती थी एंड देन फाइनली ईदर FM और oops क्लास के थ्रू हम इसको क्या करते थे, डिस्प्ले. This was the traditional approach, right? Right. So in the newer approach, okay, in the newer approach we go with something called as CDS plus IDV or display via OpenSQL. Oops, not OpenSQL, display via oops method. अब यहाँ पर डिफरेंस किस चीज में आ गया? अगर मैं IDV यूज करूं, so there is a much bigger difference than this traditional approach.
सेकंड थिंग स्टिल रिमेन्स द सेम, उफ्स मेथड यहाँ पे भी हम उफ्स मेथड से डिस्प्ले करते थे, बट यहाँ पे डिफरेंट क्या हो रहा है, द डेटा रिट्रीवल. देन देयर इज समथिंग कॉल्ड एज CDS. CDS stands for core data और डेटा services. सर्विस. Okay, what is a core data service? It is nothing but a view. A view क्या होता है? ओके. How come a view is different than table? अगर हम ECC की बात करें तो how come a normal view is different than table? Sir, if you ask me about ECC table, then we cannot do the Yes, ECC. calculation there. Okay. In ECC. Okay. In CDS, we can do the calculation. No, no, We no. can I'm look talking the. about ECC में भी views होते हैं, right? Projection, database, and then there's Mm-hmm. database table also. At both the places we can maintain values. Then what's the difference between both of them? You understood the question, right? No, I didn't get the So properly. ECC में जब आप SE11 में जाते हो, so you have a table and then just below table what you have? You have this views. So what is the difference between this table and views? टेबल फिजिकली डेटा स्टोर करता है, व्यूज स्टोर नहीं कर पाता, मतलब वो सिर्फ रीडिंग के लिए यूज कर देते हैं. So basically अगर मैं maintenance view बनाऊं, तो can I create maintenance view on views also? I didn't clear. Okay, so this is an assignment for you, let us say, where what you want to do, you shall get back to me with this comparison, right? So it will give you a better understanding जब हम CDS में जाएंगे. Okay, Okay. so just find it out, just create a table. So basically हम TMG वहाँ पे भी बना सकते हैं views के अंदर भी. Sure. So Yeah, right. have a detailed difference view and table, detailed difference. Okay. और क्या Okay. अगर मैं व्यू में कुछ करता हूँ तो हाउ कम इट इज एडवांटेजियस टू अस देन इन टेबल. So get an example ready, drop it in the same group so that people know that we are doing some assignments also, right? And they know that we are working. Yeah. So ये Okay. आप सिंपल कंपैरिजन अब आपका है तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें, ये कर लेना. देन अभी हम आते हैं सीडीएस की तरफ. ओके, तो सीडीएस इज समथिंग दैट लेट्स से यहाँ पे आपने बोला कैलकुलेशन पॉसिबल है, ऑब्वियसली कैलकुलेशन पॉसिबल है, बहुत सी चीज़ें पॉसिबल है, बट द बिगेस्ट एडवांटेज सीडीएस का है इज ओनली रिट्रीवल. ओके, only Okay. advantage which CDS provides me right now is data retrieval. Data retrieval rate is much faster. So अगर there's a concept called as trace जो हम ABAP के लिए तो देखते हैं, बट या हाना में भी हमारे पास में एक कॉन्सेप्ट है ट्रेसिंग के लिए, तो हम वो देखेंगे उसमें. आई विल टेल यू दैट हाउ कैन यू retrieve a data much faster way. Okay, now अब आपको देर आर ओनली टू थिंग्स जो मैं प्रैक्टिकली मानता हूँ कि सीडीएस के ये सॉरी अबैप और हाना के लिए इंपॉर्टेंट है. व्हाट आर दे? सीडीएस एंड एएमडीबी. ओके, व्हाई ओनली दिस टू? देन इतना बड़ा पूरा की पूरा मॉड्यूल का मतलब क्या है? डू यू नो? टॉप टू बॉटम. नहीं मतलब आई मीन टू से कि अपने पास में काफी सारे मॉड्यूल्स है, राइट? जैसे सब मॉड्यूल इतने बड़े बड़े होते हैं, बट अगर इस मॉड्यूल में जब यही दो चीज इंपॉर्टेंट थी तो हमको इतना टाइम क्यों लग रहा है कोर्स के लिए? बहुत वास्ट है, मतलब सीखने के लिए. नो, सीडीएस आपका लगेगा 4 दिन, मतलब 4-5 घंटे, और एएमडी पे लगेंगे 3-4 घंटे, तो समझ लो 10 घंटे इसमें जाएंगे. बचे हुए 20 घंटे हम कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे मतलब उसका डिटेलिंग में. हैं? वन थिंग इज डिटेलिंग, यस. अपार्ट फ्रॉम डिटेलिंग, सो सीडीएस व्यूज अगर आप देखो तो सीडीएस व्यूज की जो कैपेबिलिटी है दैट इज नॉट ओनली टिल दिस हाना कोर्स. ओके, सीडीएस व्यू से आप डायरेक्टली आजकल फ्यूरी एप्स बना सकते हो. ओके, जैसे कि मैं अभी आपको बता रहा था ये चीज. अब अपार्ट फ्रॉम दिस लेट अस से मेरा जो क्लाइंट है, ठीक है, वो बोलता है कि भाई मुझे है ना ये जो तेरा आईडीवी है या फिर, ओके, नो नॉट दैट, आई फेच आईडी डेटा है. फ्रॉम सीडी, या वन सेकंड, फेच फ्रॉम सीडीएस एंड डिस्प्ले वाया oops. अब ये बोलता है कि भाई ये डिस्प्ले मेरे को अच्छा नहीं लगा, तो व्हाट आई हैव सीडीएस consumed and used as IDA. इसके अलावा अब वो बोलता है कि आई एम नॉट हैप्पी विद दिस स्क्रीन्स आल्सो, आई नीड सम विजुअली हार्मोनाइज स्क्रीन और लेट्स से सम फ्यूरी स्क्रीन्स. तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? CDS exposed as a OData.
राइट। नाउ वो ये बोलेगा कि भाई मेरे को ये सब नहीं चाहिए, मेरे को एक रिएक्ट का ऐप चाहिए इसके ऊपर, रिएक्ट जेएस। तो इसको हम CDS को व्हाट वी कैन डू, इट कैन बी कंज्यूम्ड ऑन एनी tech using a API call. So how many types of things are possible here? Almost everything, right? So जब आप CDS कर भी रहे हो, so there are so many things which are there which you can learn and maybe you can leverage it in the future. So do you understand like where exactly you have to spend more time? So interview perspective, apart from this to those 20 hours you can just rely for interview, वहाँ पे आप time दे सकते हो. But this thing CDS and AMDP that should be strictly for CDS and AMDP क्योंकि यही अपना करियर में अपने को सबसे ज़्यादा यूज होने वाला है. Okay, now we'll move to one scenario जहाँ पे I'll tell you how to determine. अब देखो मैंने आपको ये चीज़ बताई थी या नहीं, I don't remember, कि अगर मैं काम कर रहा हूँ कोई भी प्रोजेक्ट पे या कुछ भी, सो फर्स्ट थिंग अगर मुझे कोई चीज़ दी जाए, मुझे कोई क्वेश्चन दिया जाए या फिर प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया जाए, आई शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई कि ये सॉल्व कैसे करना है. एंड अगर मैं वो कर रहा हूँ देन ओनली आई विल बी कॉल्ड एज आर्किटेक्ट, राइट? एल्स आई एम अ मेयर डेवलपर. अगर आप अभी आपको देखो तो यू आर अ डेवलपर, बट अगर आपको SD से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए, ऑब्वियसली आप उसमें apart from a developer you would be able to provide some extra knowledge on that, right? So similar to that आपको ABAP में भी है, you have something called as, oh sorry, let's go to a PPT. Okay, some slide I need. Okay, so let us say मेरे पास में अभी एक रिक्वायरमेंट है जिसमें मुझे जानना है कि when to use what. Okay, when to use what यानी कि let us say मेरे पास में I'll just insert a scenario for you and you have to tell me कि आप इसमें क्या अप्रोच चूज करोगे. अच्छा, आपको CDS और AMDP के बारे में पता है? What are AMDP and CDS? या सर थोड़ा बहुत नॉलेज है. AMDP के साथ आप उप्स कंसेप्ट से जाते हैं. Okay, And for good. the CDS we have annotation, right? Okay, yes. So I need to fetch a data. Okay, let's say get data or let's say fetch data. Now you have two things here. Okay, अब आपके पास में क्या है, यहाँ पे आपके पास में सिनेरियो है, ये आपको मल्टीपल डेवलपमेंट ऑब्जेक्ट्स के अक्रॉस रहेगा क्या? यू मस्ट अंडरस्टैंड कि आपको आपके पास में अभी क्या है कि डू यू नीड दिस अक्रॉस डेवलपमेंट ऑब्जेक्ट और इट इज स्पेसिफिक टू सम डेवलपमेंट ऑब्जेक्ट, राइट? So there are two scenarios to it. I don't know what to use. Global I and don't know. local. Okay, so Global and local. so there's a thing that is, will this be used across डेवलपमेंट ऑब्जेक्ट्स? अगर इसका आंसर यस है, ओके, इफ यू मीन कि इसका आंसर अगर आपने यस दिया, सो व्हाट डू यू नीड टू डू? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल नो, अगर ये ज्यादा चीजों की तरफ यूज नहीं हो रहा है, देन विथ व्हिच अप्रोच वी विल गो, आपको ये भी अभी आपको क्लैरिफाई करना पड़ेगा. I will have to go for the local things. Okay, that is also true, but do you still need CDS and AMDP on top of that? I guess now the question would be clear. Do you think फिर भी मुझे CDS और AMDP बनाना चाहिए? Yes. Okay. Okay, tell me one thing. आपको अगर टेबल बनाना है, do you create a table directly in your system और आप types use करते हो then internal table declare करते हो? और types use करता हूँ. Right? We don't directly create standard table ना. No. So don't you think view भी एक तरह से वही है? Yes or no? So basically in this case what you will do, you will use ABAP SQL. अगर आंसर क्या है, अगर आंसर है, क्या है आंसर हमारा, बताओ, याद है आपको? नो. अगर हमारा आंसर है कि विल दिस बी यूज्ड अक्रॉस डेवलपमेंट ऑब्जेक्ट्स, ऑल द मल्टीपल डेवलपमेंट ऑब्जेक्ट्स, अगर नो है तो यू विल यूज ABAP SQL. But if it will be used across multiple objects, okay,
इन दैट सेंस आपको क्या करना पड़ेगा, इफ इट इज यूज्ड अक्रॉस मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स, सो अगर आपके पास में मल्टीपल रिजल्ट्स आपको डालने हैं तो एक सिनेरियो रहेगा, और अगर आपको एक सिंगल रिजल्ट डालना है तो एक सिनेरियो रहेगा। ओके, नाउ अगर ये मेरी चीज मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज हो रही है, ये यस वाला सिनेरियो राइट अब हमारा, ओके वी हैव मल्टीपल रिजल्ट। अब अगर आपके पास मल्टीपल रिजल्ट है, अगेन व्हाट आई विल अगेन हैव टू सिनेरियोस हियर। क्या क्या, यस एंड यूज यस एंड यस एंड नो। यस। अब मैं इसके अंदर भी, आप मुझे बताओ, अब आपको AMDP और CDS का सबसे ज्यादा लोगों का क्वेश्चन ही ये होता है कि सर हमको कब क्या यूज करना है ये बताओ। तो अब आपके पास में क्लियर होगा, अगर हमारे पास में मल्टीपल रिजल्ट्स है तो हम कहीं और जाएंगे, और नहीं है, दिस इज नो वाला साइड, वी विल यूज CDS अगर नो है तो। ओके, और अगर हमारे पास में इसका आंसर क्या है, यस है, तो हम क्या करेंगे, AMDP। Am I clear? Did I make sense to you? Okay, got it. Then I है ना? want to display the more results. Sorry? Okay, so I will wait हाँ, for yes, it. Yeah, I got the point. right? So this is what we need here. Okay? अब आपको Okay. इस sorry? Yeah. So I was talking about with the help of the CDS, you can display only one result, right? Exactly. So CDS का प्रॉब्लम ही ये है, Okay. एंड कि हम क्या करेंगे, एट अ टाइम हम एक डेटा, लेकिन आजकल CDS में भी क्या है ना, लोग हायरार्किकल डेटा लेते हैं। जैसे कि लेटेस्ट से अगर आप Amazon पे जाते हो, when you get the first list, उसके ऊपर आप क्लिक करते हो तो आपको एक सेकंड लिस्ट आती है, सेकंड लिस्ट पे क्लिक करोगे उसकी डिटेल्स आएगी, राइट? तो ये लैंडिंग पेज, ये सब जो हायरार्किकल डेटा है ना, ये सब चीज आजकल इसमें भी पॉसिबल हो चुका है। Okay, in CDS as well. इन CDS एज वेल, बट स्टिल हम लोग किसके साथ जाएंगे, AMDPs के साथ। ओके, अब आपको, अगर आप ये वाला क्वेश्चन अगर आपका करके आओगे तो यू विल हैव मोर क्लैरिटी कि हाँ व्यूअर टेबल का क्या है, एंड देन नाउ वी ऑलरेडी नो, बिफोर इवन स्टार्टिंग द कोर्स वी ऑलरेडी नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन CDS एंड AMDP। सो नाउ यू वोंट बी एवर कंफ्यूज्ड कि हाँ कब कौन सा यूज करना है, राइट? Right. Okay. Let us go then. Now I'll again move to my notepad file, or let's say in that context my word file. Okay. Now यहाँ पर अब आपको बोला हुआ है एक सिनेरियो में, when do you use a columnar store and when do you use a row store? You have to answer me now. कब आप कौन सा चीज यूज करोगे? मतलब मैंने जितना पढ़ा है सर, व्हेन जो टेबल फ्रीक्वेंटली अपडेट होते रहता है, ओके, Yes. मतलब Yes. देन वी गो फॉर द रो स्टोरेज, Okay. जिसमें अपने को ज्यादा रिट्रीवल लेना पड़ता है, मतलब रीड करना पड़ता है, फ्रीक्वेंटली रीड करना पड़ता है जो टेबल, तो इसके लिए हम लोग कॉलम स्टोरेज यूज है। यस। सो आपने ये चीज जब आपको ऑलरेडी पता है तो यू ऑलरेडी नो दैट व्हाई कॉलमनर स्टोरेज एंड व्हाई रो स्टोरेज। ओके, यू नो ऑलरेडी द बिगर डिफरेंस कि हाँ हमको अगर रो स्टोरेज के साथ जाना चाहिए या कॉलम स्टोरेज के साथ जाना चाहिए। नाउ आई विल अगेन ऐड वन मोर पॉइंट टू इट। लेट अस से अगर मैं जा रहा हूँ रो स्टोरेज के साथ में भी, इफ आई गो विद रो स्टोरेज, लेट अस से, अब यहाँ पर मेरा फायदा क्या हो रहा है, I will be more happy when it is create, read और delete. सॉरी, create, update और delete. बट अगर आप बोल रहे हो कि अगर मेरे को रीड ही करना है तो रीड इज मच फास्टर विथ व्हाट, कॉलम स्टोरेज। देन अब ये तो फिर गलत हो गया ना कि हाँ अगर सिर्फ कॉलम स्टोरेज में सिर्फ रीड ही फास्ट है तो फिर हमारा फायदा क्या हाना यूज करने का? डू यू थिंक, डिड यू गेट दिस क्वेश्चन, किया ऐसा क्वेश्चन आपको दिमाग में आया था? यस, आया था। या डिड यू फाइंड आउट द आंसर और यू आर स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग इट? I didn't get the answer for it, sir. Okay, you did not get it yet. Okay, no problem. So I'll tell you a simpler answer here. देखो, मैक्सिमम जो अभी के लिए फ्यूल इज जस्ट डेटा, राइट? राइट नाउ बोलते हैं कि हाँ अभी के टाइम का फ्यूल इज डेटा। सो बेसिकली अगर आपके पास में डेटा ही मिल गया आपको, देन यू कैन परफॉर्म एवरीथिंग। एनालिटिक्स के लिए क्या चाहिए आपको? कैन यू टेल मी?
आई मीन इफ यू नीड टू परफॉर्म एनालिटिक्स, जैसे कि जो डेटा एनालिस्ट होते हैं आजकल, डेटा एनालिस्ट के जॉब, डेटा साइंस के जॉब बहुत ज़्यादा वो हो रहा है, बूम में, राइट? सो व्हाट डू दे नीड? हम्म, दे ओनली नीड डेटा. डू यू थिंक दे क्रिएट, अपडेट हाँ, और डिलीट समथिंग? नो, दे जस्ट रीड, राइट? right. या अब आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है एक इंडस्ट्री का, या वो व्हाट इज दैट नाउ अकॉर्डिंग टू दिस एग्जांपल? इट इज नथिंग बट Reading ऑब्वियसली रीडिंग, बट व्हाट्स द इम्पोर्टेंट पार्ट जो आपके पास में सबसे ज्यादा स्ट्रांग होना और चाहिए आपका? That डेटा is your database, right? Your database should be super fast. Your database should have everything. Data anomaly नहीं होनी चाहिए. So your DB is something जो आपका पूरा production या जो भी है वो fuel करेगा, right? So if your data itself is great, you don't have to worry about anything. हाँ भाई, मेरा database सही काम करेगा. I know when to use what and when to read, when to update. Now SAP आज तक फिर कैसे चलते आया without read? आपको क्या लगता है कि हाना में और ईआरपी में फिर हमारा ज्यादा डिफरेंस कहाँ पे आया? इट वॉज ओनली द रीडिंग कैपेबिलिटी. क्योंकि क्या होता है ना, जब हम कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं, कुछ भी करते हैं फाइनेंस में भी, जैसे मैं फाइनेंस में भी काम करता हूँ अपार्ट फ्रॉम अब ऐप, तो उसमें क्या होता है कि जो फाइनेंस का डेटा होता है बहुत ज्यादा बड़े बड़े वहां पे नंबर्स होते हैं, राइट? और वो कैलकुलेट करना इज नॉट सो इजी एंड इट इज कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन. लेट्स से की फील्ड्स होती है, कभी कभी क्या होता है कलेक्ट स्टेटमेंट्स आ जाते हैं. तो ये सब जो चीजें है, ये सब प्रोसेसिंग पावर के लिए इवन ईआरपी वाज नॉट सो, नो नॉट सो बैड. बट ईआरपी में क्या होता था, इवन द फर्स्ट सिलेक्ट, जब हम सिलेक्ट लिखते थे कोई टेबल पे, अगर इवन इफ इट्स 1 मिलियन रिकॉर्ड, ईआरपी रो देता था. बट वही ओके चीज यहाँ पे आपकी फास्ट हो गई. तो जहाँ पे कैलकुलेशन और रीडिंग फास्ट हो गई, वहां पे एप्लीकेशन का पूरा नक्शा ही चेंज हो गया कि ओके, वी नो वी आर मच फास्टर देन द ट्रेडिशनल डेटाबेसेस. राइट Okay, ओके I hope I made sense to you in this या difference. Now you are able to understand why row and why column, and why even though only reading capability column has, still why we go for this. Okay. अब ओके यहाँ पर एक मुझे ओके बोला गया है कि डेमो देना है आपको, कॉलम स्टोर डिक्शनरी कंप्रेशन. सो बेसिकली दिस इज माय ओन सिलेबस. ओके, दिस इज नॉट प्रोवाइडेड टू मी बाय ओके एनीवन. दिस इज माय ओन सिलेबस व्हिच आई गिव टू इंस्टीट्यूट्स. सो बेसिकली अब आपको बोला जाएगा कि कॉलम स्टोर एंड द डिक्शनरी कंप्रेशन टेक्निक. ओके, सो डिक्शनरी कंप्रेशन का मैंने अभी आपको एक सिंपल एग्जांपल दिया था. व्हाट वाज दैट? व्यू एंड टेबल सॉरी. व्यू और टेबल का बताया था आपने यस, जो हमने अभी यहाँ पे टेबल का दिखा था ना. हम्म वन सेकेंड. So here we saw that there were indexing. ओके What is इंडेक्सिंग this? What is this? This is data compression, which is possible because of ओके HANA, right? अब ये तो एक ऊपर के लेवल पे compression हुआ. Now I told you I work on a module where oil and gas data is important. Okay, oil and gas. So now we had around 5 to 6 tables जो बहुत ज़्यादा important हुआ करते थे. Okay, apart from that, accounting tables कौन सा important है? BKPF, BSEC, BKPF, BSEC. और कौन सा है? BSED, BSIC. ओके, ये सारे टेबल्स थे. अब ये सब टेबल्स को हटा के एक सिंगल चीज आ गई, एसी डोका. ये मैंने आपको कल बताया था, राइट? अब अगर आप एसी डोका देखोगे ना, इन सब से फील्ड्स जो रिडंडेंट फील्ड्स थी या जो मल्टीपल टाइम्स फील्ड आई थी, उन सब चीजों को हटा के ये सब चीजों को कंप्रेस करके कहाँ डाल दिया है? एसी डोका. सो इसी आपका दो का डेटा मॉडलिंग आपका इजी हुआ या डिफिकल्ट हुआ? व्हाट इज डेटा मॉडलिंग, डू यू नो? इजी हुआ मतलब डेटा मॉडलिंग यू नो व्हाट इज डेटा मॉडलिंग, राइट? हम्म ओके, सो ये डेटा मॉडलिंग अब इसकी वजह से क्या हुआ? इट बिकेम मच सिंपलर. इट वाज मच कॉम्प्लेक्स अर्लियर कि हाँ, हमको इस टेबल से पहले ये चीज उठानी है, फिर इस टेबल की चीज दूसरे टेबल में हिट करनी है. ये सब चीजें बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हुआ करती थी पहले. ओके, नाउ एवरीथिंग बिकेम मच इजी. नाउ अगर हम आपको, मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि आपको पता है ऑलरेडी ये कॉलम स्टोरेज कहाँ पे होता है, अगर मैं आपको डिक्शनरी कंप्रेशन ये सब चीज दिखाऊं तो आई कैन शो इट टू यू इन वन ऑफ द सिस्टम. लेट मी सी व्हिच वन आई हैव राइट नाउ. Connect. Yes.
So meanwhile, I have one question, Sure. like related to row store and column store. Like Mm-hmm. while creating the table in AC11, that time select the row store. Okay, but after some day, I thought that I think it should be gone for the column store. So is it possible to change the visibility of this? For row store से column store में change कर सकते हैं क्या? Yes, you can do it, but that's a let's say a design decision which your team should accept too, because it Okay, is not okay. something जो कि बहुत कम costly रहेगा. This can be a bigger costly thing. Mm-hmm. Okay. Okay. Mm-hmm. Can you tell me any scenario जैसे मतलब आपको अगर लग रहा है कि ऐसा आपको चेंज करना है, so still I would suggest कि ये जो खाना है, okay, I had one last thing I guess before we jump in here. हाँ, वो चीज मैंने आपको बोली ही नहीं, हमने वो टॉपिक यहाँ पे छोड़ दिया था. हम यहाँ पे देख रहे थे कि हमने ECC सिस्टम भी देखा था, वहाँ पे क्या क्या किस टाइप से स्टोर था मेरे इसमें, कॉलम स्टोरेज, और राइट? या So this is same as HANA only then, but it was just written there, it was just selected as column storage. Still the storage, still the selection of things will happen via row storage only. रो So स्टोरेज. that is ओके. something misleading which SAP has released, and this is in some like enhancement package 7 and 8. इन दोनों में तो ये है ही. Okay, you have enhancement package 6 I guess, इसीलिए थोड़ा issue है, या but अगर 7 and 8 अगर रहेगा, so there you can able to find, but this is much misleading, right? अगर कोई भी उसको पढ़ेगा, so they will understand कि okay, they are choosing from column storage, whereas internally वो automatically release के checks देखने के बाद वो automatically कहाँ से data fetch करेगा, row storage से. So रो there's स्टोरेज. nothing so different about it. Okay, now yeah, we have come here. Let's say we had table like BSEC. I'll go here. Okay, this was nothing but BSEC is also a cluster table, if you know. So अगर आप यहाँ पे देखोगे, so you have so many fields in here. कि राइट. around 439 fields. Okay, I'll tell you one more table जो मैं use करता था. It was JVSO1. Okay, it had around 89 fields. Most of them are redundant. Now let's go for source of truth. It has 505 fields. At least 20 to 25 tables are compressed here. At least I'm saying 20 to 25. Okay. See all the fields, even my JV fields are compressed here where it is. Okay. You see JV run ID somewhere it was. So everything was compressed and now I have a single source of truth. जहाँ पर कि you can see this values migration से related table, हर एक टेबल का यहाँ पे आपको वो मिल जाएगा. अगर फाइनेंस का डेटा इसमें है तो you can find it here. Do you know a table called as MATDoc? मटेरियल डॉक्यूमेंट. Yeah, yeah. So even this is one such table. जब भी आपका मटेरियल डॉक्यूमेंट पोस्ट होता था, ये अलग अलग डॉक्यूमेंट्स क्रिएट होते थे, अलग अलग चीजें थी. They came up with MATDoc. MATDoc में बहुत सी अच्छी अच्छी चीजें आ गई है, which was never there. So this is nothing but a data compression that happened after implementing HANA. And that is where अब क्या होता है ना, जब कोई बंदा ECC से HANA पे आता है, so the biggest challenge they face is कि okay, the conversion of values, और लेटेस्ट से कुछ कुछ चीजें जो चेंज हो चुकी है, जैसे कि इनिशियली उनके पास में अलग से टेबल हुआ करते थे उनके मॉड्यूल्स के टू वैलिडेट डेटा, टू वेरीफाई डेटा. अब ये सब क्या है, दिस इज अ कंप्रेस्ड डेटा, दे डोंट हैव अ सेपरेट टेबल फॉर दैट. इसी के अंदर उनको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी. So there were advantages obviously, but there were also bit of disadvantages as per customer's point of view. अगर एक यूजर इन डेटा को देखेगा तो they may or may not like this. Okay, so maybe compression से related I'll see if I can formulate an example जो हम खुद create करें as a table. Okay, but this is something जो आप table create करोगे तब अगर आप column storage select करोगे, you will able to understand कि हाँ डेटा हमारा store कैसे होता है. But can you see it programmatically or let's say in debug? Probably not. ये आपका डेटा स्टोरेज अभी भी आपको पुराने जैसा ही दिखेगा. There's no difference in visualizing it. Rather जब ये स्टोर होगा तब आपको ये एक्चुअल डिफरेंस दिखेगा. Now I was talking to you about code to data paradigm, right?
Okay. what all things ये हमने in memory database की बात करी थी. They have overview, code to data capabilities, okay, performance improvement versus code adjustment. This thing I'll talk, but before that let's see these two things via a diagram which I Okay. have. Okay. So, sir, down. I have one Yes. doubt. Like, Yeah, as yeah. I told you that in S4HANA, there are a couple of tables has been compressed to the Ave Coda kind of thing. You have told me, right? Uh-huh. Okay. AC Doka. Okay. If Okay. Huh. suppose ECDOCA. Okay. If a client is currently client is using the ECC system, now he is moving to the S4HANA. So now Okay. उसको जो कस्टम टेबल रहेंगे जिसमें उसने Uh-huh. उसके उस टेबल से कुछ डेटा पेज किया रहेगा, देन Okay. वो जब मूव करेगा S4HANA में Uh-huh. तो कोड वैलिड रहेगा. Yes. आपके कोड को मतलब वही मैं आपको बोल रहा हूँ. जब हम लोग ने हाना रिलीज किया राइट 2016 में समझ लो 15 में, तो 440 मिलियन लाइन ऑफ कोड हमने रीराइट करा. अब ये 440 मिलियन में क्या रहेगा? डोंट यू थिंक इसमें वही रहेगा कि हाँ लेट्स से B6 से अगर अब हम एसी डोका से फेच कर रहे हैं, ये कोड वहां पे रहेगा. कोई फील्ड कॉपी हो रही थी वो गलत हो रही थी, अब हम एसी डोका से उसमें डाल रहे हैं तो ये रहेगी. तो हर चीज वैसे रही. अपार्ट फ्रॉम दैट देखो अभी बेसिकली जो चीज आपने शॉर्ट में पूछी उसको बोलते हैं माइग्रेशन. ओके. राइट. माइग्रेशन. अब माइग्रेशन इज अ बिगेस्ट टॉपिक आई विल से राइट नाउ इन मार्केट, एंड मे बी फॉर नेक्स्ट 5 to 10 years बहुत अच्छा टॉपिक है टू नो, बिकॉज तब तक लोग माइग्रेट करते रहेंगे, उनको प्रॉब्लम्स आती रहेगी. सो एसएपी में जब मैं हूँ तो हमारे पास में कुछ कॉकपिट्स है. दे आर कॉल्ड एज माइग्रेशन कॉकपिट. ओके. ओके. हम वहां से डेटा लेते हैं, डेटा प्रोसेस करते हैं, डेटा सेंड करते हैं, खत्म. हमको मतलब नहीं है क्या हो रहा है बैकएंड में, क्या चल रहा है क्या नहीं. हमारे पास में क्या है, माइग्रेशन कॉकपिट है. हम बोलेंगे चलो आज हमको ये कंपनी कोड का डेटा मूव करना है, तो उस कन्वर्जन का काम हर एक चीज का. और इसके अंदर ऐसा नहीं है कि बस एक क्लिक पे हो जाएगा. ये खुद आपको बताएगा सिस्टम कि भाई अगर तेरा ऐसा ऐसा कुछ है तो अब हम इस चीज को सपोर्ट नहीं करते. या फिर अगर तेरे पास में करेंसी सेटिंग सिर्फ 3 थी तो अब हम 10 को सपोर्ट कर रहे हैं, तेरे को और कोई मेंटेन करना होगा तो वो भी डाल सकता है. सो बेसिकली हम जब मूव करवाते हैं तो देयर आर सर्टेन 8 to 10 स्टेप्स जो उसको कंटिन्यूसली फॉलो करना है, एंड आफ्टर दैट ओनली द माइग्रेशन हैपेंस. तो माइग्रेशन जितना डिफिकल्ट हमको लगता है, इट इज एक्चुअली नॉट दैट डिफिकल्ट. ओके. ओके. ये हम मतलब एज अ यूजर हमको ये ऑब्वियसली सोच में डाल देता है कि ओके यार पहले तो मटेरियल नंबर की वैल्यू 18 हुआ करती थी, अब 40 हो गई, तो क्या होगा जो पुराने मटेरियल क्रिएट किए होंगे उनके तो लीडिंग जीरोस चले गए. नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ. ये सब कंस्ट्रेंट एसएपी ने लेके रखे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली देखो उनको लोगों को माइग्रेट करवाना है तभी वो रेवेन्यू बनाएगी राइट. एंड दैट इज वेयर दे हैव ऑलरेडी टेकन इनटू अकाउंट ये सारी चीजें, उनके दिमाग में है ये सब चीजें. ओके. 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 गॉट इट. Yeah. So now this is not my screenshot. This I took from someone's, maybe the professor from Hyderabad. So what he did here, okay? So he was talking about let's say code to data paradigm, in सब के बारे में he was talking. So what was this? So if I show you 1 second. ओके. आई कांट. सो राइट नाउ जो मेरे कैलकुलेशंस थे ये सब थे डेटा टू कोड में ये हो रहे थे, ये आपको ऑलरेडी मैंने कल बता चुका हूँ. स्टिल नॉन राइट. नॉन हाना डेटाबेस और हाना डेटाबेस के बीच में 3600 टाइम्स का डिफरेंस आया था ओरेकल एंड एसएपी हाना में, जब उन्होंने कंपेयर करके बताया था. दे डिड नॉट से ओपनली दैट इट वाज ओरेकल, बट हाँ ऑब्वियसली कंपैरिजन हुई थी एंड ऑब्वियसली इट वाज ओरेकल और एसक्यूएल. बट हाँ देयर बिगेस्ट कॉम्पिटिटर इज ओरेकल. सो या. ओरेकल. नाउ अभी हमारा करंट अप्रोच क्या था? We already get data from database, we retrieve it somewhere, let's say fetching some 1 million record, and the load. I guess everything I have already told you. There's nothing so different in this, but diagrammatically it makes much more sense. Now in HANA approach, what we do? In HANA approach, why we rely on CDS and AMDP? Because they make sure that everything happens at database, right? So that is bit different here. Okay. Now there is again a conception in market में that HANA is different than ABAP on HANA. Do you know this? HANA is different than ABAP on HANA. ABAP on HANA. Yeah. HANA developer is It, different than ABAP on HANA developer. I don't think there is such a difference because in HANA we use the SQL, MySQL, right? Mm-hmm. And in ABAP we use OpenSQL.
सो बेसिकली आपके पास में हाना में हम लोग नेटिव हाना प्रोग्रामिंग करते हैं which directly happens on database. Okay, so let's say जो हम लोग मॉडलिंग की बात करते हैं, ये सारी चीजें होती थी नेटिव हाना के ऊपर, whereas इसको सिंप्लीफाइड वर्जन में बनाना इनके लिए इसलिए जरूरी बन गया क्योंकि who will leave open SQL syntax and now go and learn native SQL, right? Again, I mean, there is one more as a type of SQL, right? Type SQL. Okay, so they had to write that TypeScript and all to understand this कि okay यहाँ पे ये हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है. So those sort of coding which they used to do initially when HANA actually began, वो directly database पे हुआ करती थी, which was much difficult to understand. Okay, which was way faster than ABAP on HANA, but which was very difficult for anyone to migrate and move. And that is where we came up with something called as ABAP on HANA. इससे पहले we had mostly view modeling and all. अब ये सब व्यू मॉडलिंग, ये सब चीजें जो नेटिव हाना पे हुआ करती थी, ये सब कहाँ पे शिफ्ट करती है? ABAP on HANA पे, यूजिंग CDS एंड ऑल. या सो पहले जो हुआ करती थी हाना डीबी कोडिंग बोलते थे उसको, ठीक है. अब वो चीज कंपनीज यूज नहीं करती बिकॉज दे डोंट हैव सो मेनी, मतलब एसएपी खुद ऐसा करता है कि आज प्रोडक्ट निकालेगा, अगले 5 साल में दे विल से कि ओके नॉट मेनी थिंग्स आर अवेलेबल फॉर दिस, let's start something new. So in 2017 there was a thing called as BOF framework. Okay, तो वो मुझे आता नहीं था लेकिन I just wanted to learn it, and when I started learning it they said in 2019 or 20 they said no more used, we won't use it, there's something called as RAP, it is coming up. उन्होंने RAP निकाल दिया 2020 में. Okay, RESTful ABAP programming. So it is like that. Same went with HANA. जब मैंने start किया career, that time people wanted to have HANA developer, but then कोई HANA को जानता नहीं है. Now people only know ABAP on HANA. Okay. हाँ, so that is a major difference जो आपको पता होना चाहिए अगर आपको कहीं पे कोई, मतलब जैसे इसलिए मैंने आपसे पूछा कि आपको सिलेबस पता है या नहीं, because there are few people those who come to me and they say कि सर हमको सिर्फ नेटिव आना सीखना है, because maybe 1 or 2 companies are still using it. Some people from Sony last year they wanted to learn only native HANA. So something अगर ऐसी requirement है, that is why I just wanted to ask you. Now अब ABAP on HANA क्यों पॉपुलर हुआ? Why not native HANA? Because plugins इतने अवेलेबल नहीं है. It is not easy to let's say and also वहाँ पे क्या होता था ना, वहाँ पे आप डायरेक्टली डेटाबेस के साथ खेलते थे. ABAP on HANA का एक dirty side I'll tell you that ABAP on HANA is still not database programming. Okay, it still have an application layer involved somewhere. Okay, I don't know where, but it still have application layer involved somewhere, whereas ABAP on HANA, right? ABAP on HANA is completely, it is HANA, native HANA is completely on DB layer. Okay, अब DB layer पे जब आप चीजें करोगे, don't you think the amount of let's say things that can go wrong is also much more, right? Yes, and that was the reason it was very unpopular opinion जब लोगों को ये चीज नहीं यूज करने थे. Okay. And yeah, that was a brief history about ABAP and ABAP on HANA. I don't know why we started it, but yeah, you should know it whenever आप कभी काम भी करो, तो अगर कोई नेटिव के बारे में बात कर रहा है तो किस चीज की बात हो रही है, राइट? Now there is something called as performance improvement and code adjustment. इसकी मैं बात कर रहा था यहाँ पे. अब क्या हुआ ना, जब सबसे पहले, मतलब जब हमने ABAP का जर्नी हमने जब स्टार्ट किया होगा, लेट्स से माइग्रेशन वाला जर्नी भी, सो सबसे बड़ा कंसेप्शन ही ये था हमारा कि यार अपना परफॉर्मेंस बेस्ट रहे, क्योंकि अभी किसी के पास भी टाइम नहीं है. पीपल इनिशियली यूज्ड टू रन बैच जॉब्स, आपको बैच जॉब पता होगा, राइट? अब बैच जॉब्स रन करो तो अभी ये मल्टीपल दिन तक चलेगा, एंड देन रिजल्ट आएंगे तब हम देखेंगे कि क्या हो रहा है. ये सब चीजें चलती थी. अभी लोग बोलते भाई हमको इतना टाइम ही नहीं है, सब चीजें मेरी फोरग्राउंड पे चले, राइट? सो एंड दैट इज वेयर दिस पीपल केम अप विथ हाना. हाना का ऑन फ्लाई बोलकर जो वर्ड है, व्हाई आई एम यूजिंग इट अगेन एंड अगेन, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ दैट. बिकॉज हाँ, हर चीज रियल टाइम डेटा आपको मिलेगा. जैसे कि आप शेयर मार्केट देखते हो, शेयर मार्केट में अगर आपको रियल टाइम डेटा नहीं मिले, यू मे सफर लॉसेस लाइक hundreds or thousands, right? Whereas अगर आप यही चीज अगर ऑन द फ्लाई अगर आपके पास में डेटा आ रहा है कि अच्छा अभी ये शेयर का रेट ये चल रहा है, अभी ये होने वाला है, तो हाँ, इट इज मच मोर इजियर फॉर यू टू टेक डिसीजंस, राइट?
and that is where SAP has worked their ass out to work on only and only performance. अगर आप देखोगे जो मेरा जो मॉड्यूल था जिस पे मैं काम करता था, people still are on ECC. So ECC वाले they tell us that they come and tell us sir ये 24 hours से ये प्रोग्राम ही चल रहा है, how can we stop it? So they actually come and tell us that 24 hours are being used only for one execution of program, which we don't accept, right? अगर आपका 24 hours से चल रहा है तो you go on HANA, एंड जब हाना पे आते हैं जो 24 आवर का टाइम फ्रेम है ना, ये हार्डली उनका 20 मिनट्स 30 मिनट्स पे आ गया. मतलब वी हैव गिवन देम दैट लेवल ऑफ एप्लीकेशन दैट दे कैन प्राउडली से दैट ओके हमारा परफॉर्मेंस काफी ज्यादा इम्प्रूव हुआ है. ओके, सो परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट के लिए देयर आर सर्टेन टेक्निक्स. कैन यू टेल मी फ्यू जो आपको पता है? Like EPC. सॉरी. Hello. यस. So EPC, extended program check. ओके. Means I EPC. used to I use for the app of like ST05 or ST2. Okay. ST05, that is tracing. Okay. Then ST2 or ST30 or Okay. second is the code inspector, ST code inspector, SCI, and ABAP test cockpit L5. ATC. Yes, ATC. Very And good. Do you know parallel cursor? Yeah, I know, sir. Okay. What do we do in parallel cursor? How can I differentiate? Should I write in the program? No, that's okay. You can verbally tell that. Let's say I have a table where I'm fetching something. Okay. There's an item data, Okay. something like that. Okay. So let's suppose sir, we have a VBAC and VBAC table. Okay. VBAC Very table good. is table. Okay. We have one sales order, but on that sales order in VBAC we have a lot of items like a 10, 20, 30, 40. So for that, when I will go for the, let's suppose I have sales order number 1. Okay, when I will fetch the data from the VBAT table, I will fetch that मतलब मैं फेच करूंगा जो सेल्स ऑर्डर नंबर 1 है उसके सब आइटम फेच करूंगा. उसके बाद नहीं रहेगा कोई रिकॉर्ड आफ्टर से जब मैं मतलब उसके जब सेल्स आइटम खत्म हो जाएंगे तो वो डेटा बाहर आना चाहिए, लूप से बाहर आना चाहिए, देन सेकेंड सेल्स ऑर्डर के लिए चला जाना चाहिए, काइंड ऑफ थिंग, राइट? ओके, सो बेसिकली आपको नहीं लगता कि पैरेलल कर्सर इज वन ऑफ द टेक्निक? ऐसे ही बहुत सारे हम लोग कोड एडवांसमेंट पॉसिबल होते रहेंगे, राइट? जैसे कि अगर आप ABAP में काम करते हो तो आपने सुना होगा कि जब अपन रीड टेबल करते हैं या लूप टेबल करते हैं, वी डोंट यूज वर्क एरिया एनीमोर, राइट? Right, we use field symbols only. Yes, then there's this 7.4 syntax जहाँ पे और भी ज़्यादा advancements आई है, right? I mean, at SAP we are not allowed to use it much, but yeah, obviously आपको पता होगा 7.4, 7.5 syntax जो ABAP का है, that has so much advancement, right? Now, the same thing was focused while someone was developing HANA, let us say, right? कि हमारा जो परफॉर्मेंस जो कहीं पे बॉटलनेक अगर है वो completely अवॉइड करो. एंड राइट नाउ यू कैन सी जो भी आपके बड़े से बड़े जो टेबल है उनका परफॉर्मेंस इम्प्रूव्ड आर सो मच दैट इवन इफ दे हैव लाइक 50 million 100 million record and data set, the calculation don't take more than like 20-25 minutes, which used to take like 8 and 9 hours initially. Okay, now code adjustment का जो part है, that is where I was touching कि जब हम migrate करते हैं, how was the code adjusted? क्या चीजें चेंज हुई, क्या चीजें गई नए से? तो दैट इज वेयर द कोड एडजस्टमेंट कम्स इनटू पिक्चर. ओके, क्या एडजस्ट हुआ हमारे कोड के अंदर? हर एक तरह से जहाँ जहाँ पे हमको लेट्स से, जैसे मैंने मटेरियल 40 की वैल्यू की बात करी, मटेरियल पहले 40 हुआ 18 हुआ करता था, फिर 40 हो गया. हर जगह एडजस्ट तो करना पड़ेगा ना. अगर आईडॉक में एक स्ट्रिंग अगर हम आईडॉक पास कर रहे हैं, आईडॉक आ रहा है, आईडॉक जा रहा है, उस टाइम पे भी अगर आप देखो, अगर हमारे पास में एक भी गलत स्ट्रक्चर या सेगमेंट के अंदर एक भी गलत वैल्यू जाती है सेगमेंट में, तो इट में लीड टू डंप और मे भी हमारा डेटा ही नहीं पहुंचेगा, इट में लीड टू फेलियर्स, राइट? सो ऐसी चीजें जो है इनको अवॉइड करने के लिए देयर वर लॉट ऑफ कोड एडजस्टमेंट्स दैट वी आर डन. एंड दैट इज वेयर ये कोड टू डेटा पैराडाइम बस ये देखने के लिए नहीं, तो एक्चुअली देयर वाज सो मच इंप्रूवमेंट एंड सो मच हार्ड वर्क दैट वाज पुटन इन टू नो दिस. नाउ अब हाना पे जब जाते हैं ना तो आपको और मेरे को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं जाएगी. क्यों? क्योंकि हम लोग है एबैपर्स. प्रॉब्लम जाती है फंक्शनल कंसल्टेंट्स को. ओके, बिकॉज फॉर देम देयर कंप्लीट लाइफ इज अ लाई. जो उन्होंने आज तक सीखा है तुम सारी चीज को जुटवा दे रहे हो, राइट? एंड दैट इज वेयर
दे आर बिट हेजिटेंट जब भी हमारे बिजनेस डिसीजन ले जाते हैं, जब भी कोई बोलता है कि हाँ लेट्स मूव टू हाना, दे आर द वन हु सेज नो फॉर द फर्स्ट टाइम, दे लाइक नो नो नो, हाना क्यों चाहिए हमको, राइट? सो दे आल्सो हैव देयर ओन कंस्ट्रेंट, बिकॉज उन्होंने बचपन से लेकर अब तक जो सीखा है, तुम अचानक से बोल रहे हो कि ये ऐसे पॉसिबल ही नहीं है, या फिर हर एक चीज पॉसिबल है, तो दैट इज वेयर इट गोज फॉर अ टॉस. बट फॉर यू एंड मी इट इज वेरी इजी टू गो ऑन हाना, because now we'll start developing on Eclipse. Okay, Eclipse is nothing but a IDE. Okay, now I may open this. What is Eclipse? Eclipse is nothing but a IDE. What is an IDE? Can you tell me? IDE stands for Integrated Development Environment. Okay, मतलब क्या है, जैसे कि आपको एक पैकेज मिला है, हर चीज उसमें है, काम उसका है, मतलब एज अ डेवलपर आपके साथ वो भी पैरेलली डेवलप कर रहा है, वो बोल रहा है हाँ भाई यहाँ पे गलती है, ये सुधार लो. सो बेसिकली IDE is nothing but it will make your life much more easy as a app developer. So जो कोड आप पहले लिखा करते थे अपने GUI में, जब आप कोड लिखते थे तब आपको एरर मिलता था क्या? अगर आप कोड लिख रहे हो, कुछ जब आपने मैं गलत उसको लिख दिया, चेक जब मैं चेक until और we एक्टिवेट check, करने के yeah, बाद until we check or activate. So check will check the syntax inconsistency. Activate में actually थोड़ा बहुत लॉजिक पे फोकस होता है. तो अगर उसको एरर मिलता था तो आपको तब बताता था, राइट? बिफोर दैट, बिफोर दैट नहीं पता चलता था क्या इशू यस, प्रोग्राम राइट. बट अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊँ, कहाँ गया SAP HANA स्टूडियो, अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊँ तो ये SAP HANA स्टूडियो इज नथिंग बट इट्स अ टूल दैट इज क्रिएटेड बाय SAP ऑन टॉप ऑफ Eclipse. इन्होंने क्या सोचा ना, पहले इन्होंने सोचा कि भाई अगर Eclipse है तो हम इसके जैसा टूल बना देंगे, बट जब इन्होंने बना लिया तो इनको पता चला भाई मेंटेनेंस तो अपने से ना हो पाएगा, Eclipse इतने अपन एडवांस है नहीं, एंड दैट इज वेयर इन्होंने क्या किया, दे हैड टू डिस्कार्ड दिस प्लान. ओके, दे वर नो लॉन्गर यूजिंग इट. @ what was the password? Okay. ओके, ये आ गया हमारा. अब हम लोकल ऑब्जेक्ट जो भी होगा लेट अस से, ओके. अब देखो यहाँ पे हमने टाइप करना स्टार्ट नहीं किया. ओके, आई विल जस्ट क्रिएट वन मोर न्यू. अब आपको पता है आप प्रोग्राम लिखते हो, राइट? जस्ट राइट हियर प्रोग्राम. यहाँ पे मैं अपना डाल दूंगा टेम्पररी. अरे यार, विल डिस्कस एवरीथिंग व्हाट्स हैपनिंग हियर, और ये सब क्या है, पर्सपेक्टिव क्या है, हर एक चीज हम देखेंगे अगले क्लास में. नाउ आई जस्ट वांट टू शो यू जो मैंने अभी आपको बोला कि आईडी का हेल्प. देखो मैंने कंप्लीट नहीं किया लेटर से राइट, और मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने गलती से सेमीकोलन डाल दिया यहाँ पे. ओके, एंड आई रोट हेलो वर्ल्ड. सो डोंट यू थिंक मेरे को लाइन में ही पता चल जा रहा है कि मेरा एरर क्या है? ये सब चीजें आपके पास में पॉसिबल नहीं थी. यहाँ पे इतने अच्छे अच्छे शॉर्टकट्स मिले हुए ना हमको, दैट यू कैन डू सो मेनी थिंग्स हियर जस्ट विद द शॉर्टकट्स व्हिच इट हैज. ओके, we'll see them also. So यहाँ पे देखो चेक करने के लिए you have this, you have something to activate, and then I'll just run it for now so that, okay, one error somewhere else, application program. Okay, you see again हमारा आउटपुट तो हमारा आया GUI वाले स्क्रीन में ही. ओके, बट द थिंग आई वांटेड टू शो यू इज दैट आपकी सारी की सारी डेवलपमेंट जो आप वहां पे करते थे SAP GUI में, वो सारी चीजें अब आपकी यहाँ पे पॉसिबल है. तो अब हाना स्टूडियो का भी ऐसे ही फंडा था. इन्होंने स्टार्ट किया हाना स्टूडियो के साथ में, दिस सेड ओके स्टार्ट विद हाना स्टूडियो. हाना स्टूडियो वाज वर्किंग मच फाइन, एंड देन अगर आपका हाना स्टूडियो इतना अच्छा चल ही रहा था तो फिर मेंटेनेंस के अंदर प्रॉब्लम इनको इसलिए आने लगा बिकॉज एक्लिप्स क्या करता था, हर दूसरे तीसरे दिन आता था, बोलता था भाई आपका क्वार्टरली मेंटेनेंस आ गया. तो इन्होंने बोला भाई ये सब झंझट हमको नको, हम क्या करेंगे, हम हमारी लाइब्रेरी देंगे
हम हमारा एप्लीकेशन देंगे, ADT बोलकर इनका एप्लीकेशन है, दैट स्टैंड्स फॉर ABAP डेवलपमेंट टूल्स, ABAP डेवलपमेंट टूल्स। ओके, इन्होंने बोला कि जो भी बंदा इसको अगर इंस्टॉल कर लेगा अपने सिस्टम में, इंस्टॉल करने की प्रोसेस भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जाना है हेल्प पे एंड यू हैव इंस्टॉल न्यू सॉफ्टवेयर, और यहाँ पे अगर आप गूगल पे जाकर भी सर्च करोगे ABAP डेवलपमेंट टूल्स एक्लिप्स बोलकर ऐसा कुछ, ADT एक्लिप्स, ये देखो टूल्स ऑन हाना ऑन डिमांड बोलकर इनका वेबसाइट है। सो यू कैन सिंपली गो फॉर हाना, you see here and you have ABAP development tools। अब मेरे को सिर्फ ABAP डेवलपमेंट के लिए चाहिए। You can come here, you have the, एक यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा इसका, you just need that link, where is that link? Okay, get an installation for this, you should install this first, 1 second। I think, sir, I have received the memo desktop, so it is already installed there. No, that is okay, I just wanted to show you कि अब ये यूज नहीं होता, तो आप यहाँ पे तो प्रैक्टिस कर लोगे। What about after this? अगर आप यहाँ से बाहर Right. जाओगे, अगर आपको वो प्रोजेक्ट में खुद को कॉन्फ़िगर करना रहेगा, so what? So that is why I am teaching this to you। Just one thing, यहाँ पर है ना, इनका एक लेटेस्ट टूल का कुछ है, which we install ADT। हाँ, you see they would have, okay, Tellurium is the latest Eclipse which they are saying that has been come up। तो देखो अब अगर आप ये सब चीजें देख रहे हो ना, यहाँ पर देखो SAP ने अपने नोट्स डाले हुए हैं। व्हाट आर SAP नोट्स, डू यू नो ऑलरेडी? Support package? नो, नोट्स आर डिफरेंट देन सपोर्ट पैकेज। नोट्स आर नथिंग बट जो SAP रिलीज करता है, बोलता है कि हाँ भाई तेरा अगर ये प्रॉब्लम आया मैं इसको ऐसे सॉल्व करूंगा। ओके, दैट आर नथिंग बट नोट्स। तो अगर ये चीजें यहाँ पर आपको ये प्रोवाइड कर रहा है, तो व्हाट यू कैन डू, ये देखो ये आपको एडिटिंग के लिए भी कैसे आपको इंस्टॉलेशन करना। इनिशियली इट वाज सो सिंपल, आई मीन टिल नाउ इट वाज सो सिंपल, इट वाज चेंज्ड इन 9th सम वर्जन आई गेस। 1 second, I'm getting a call। Hello। Okay। So it used to be much easy initially। यहाँ पर आपको एक लिंक आता था। So ये लिंक आपको यहाँ पर लेकर जाना है and you must have to paste it here। यहाँ पर आप जैसे ही पेस्ट, ओके, यहाँ पर आपको पेस्ट करना है and you just have to say next। वो आपको बताएगा कि आपको क्या क्या टाइप की डेवलपमेंट आपको करनी है and then you could install it। अब ये इंस्टॉलेशन अभी बहुत ज्यादा रिलेवेंट हो चुका है because not many people use HANA Studio। HANA Studio is depreciated। ओके, अब हाना स्टूडियो को यूज नहीं करता एंड दैट वाज द रीजन आई वाज शोइंग इट टू यू। ओके, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी हाना स्टूडियो नो वन यूजेस, अभी एवरीवन यूजेस एक्लिप्स। दैट इज द डिफरेंस। तो एक्लिप्स के अंदर इंस्टॉलेशन कौन करेगा? अगर आपका कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा रहेगा, मे बी दे विल डू इट, बट इफ नॉट you have to do it। Okay, that is where I was telling you। Okay, let's go back। So you know the performance adjustment now, so you know overview and data and okay, these things will start tomorrow or not tomorrow, next class। Okay, what are your work timings in general? So basically, Monday to Saturday, but Saturday Okay, they allow the work from home. okay, So Saturday is apart also from, working for you। Oh, that's yeah, bad। Saturday is also working, but yeah, and they are means वो Saturday को work from home allow करते हैं, apart from Saturday office जाना पड़ता है रोज। Oh, okay, that's इसके bad। वजह से मैंने weekend का बैच लिया है kind of। Okay। मेरा ऑफिस भी घर से थोड़ा लंबा है, मतलब 2 hours लगता है, तो मुंबई Fine। तक काफी में रहेगा। अच्छा, आप मुंबई में ही हो? हाँ, मुंबई में रहता हूँ। Okay, with family? Yeah, with family means I born and bought here only। Oh, okay, then that's good actually। then तो आपको फिर भी आदत है यार। मैं मुंबई में आया था, I was like so much irritated। ये वो क्या है, कौन सी ट्रेन पकड़नी है, क्या करना है, लोकल। लोकल then I was ट्रेन like हाँ, but इट yeah। इज क्वाइट कंफ्यूजिंग यार। हाँ, मतलब नए लोगों के लिए डिफिकल्ट है, बट हाँ एटलीस्ट मेरे को मराठी आती थी, तो आई डिड नॉट गेट दैट प्रॉब्लम। सो ओके, आपको दैट आती है वाज, सब मराठी? हाँ मैं महाराष्ट्र से ही हूँ। स्टेट या आप महाराष्ट्र से हो? मतलब कहाँ से हाँ हो हाँ, सर? मैं अकोला डिस्ट्रिक्ट से हूँ। जैसे डिस्ट्रिक्ट अकोला डिस्ट्रिक्ट, राइट? अकोला यू नो, डिस्ट्रिक्ट, दैट्स हाँ ग्रेट। हाँ, मतलब मैं भी पुणे से ही हूँ, मतलब माझं पुण्याचा जन्म आहे। अच्छा। मेरा प्रॉब्लम ये है ना, मैं आपको बताता हूँ। फॉर लास्ट 1 second आई हैव टू स्टॉप रिकॉर्डिंग।